ہمارے چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز کو آپ ٹائملی دیکھ لیں۔ جہانگیر میرے قریب آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے پسندیدگی واضح تھی۔ اس کی پسندیدگی کو دیکھ کر مجھے اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ مجھ پر زیادہ ظلم نہیں کرے گا، مگر میں غلط کام کر رہی تھی۔ لاکھ اپنے دل کو دلائل دے رہی تھی مگر خود کو مطمئن نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے میرا دوپٹہ پکڑا اور دور اچھال دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ ڈانس کے سٹیپ کرنے لگا۔ میں جتنا چاہ رہی تھی کہ یہ سلسلہ جلدی ختم ہو جائے، وہ اتنا ہی وقت لگا رہا تھا۔ ڈانس کرنے کے دوران وہ میرے کانوں میں سرگوشیاں کرتا رہا۔ مجبوری تو ایک شاید مجھے بھی اب اس کی قربت اچھی لگ رہی تھی، اس لیے میں اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی اور پھر ہم دونوں کے درمیان کے سارے پردے گر گئے اور اس نے مجھے بیڈ پر گرا دیا اور آہستہ آہستہ مجھ پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ میں تو پورے 2 گھنٹے اس کی شدتیں اپنے وجود پر سہتی رہی۔ وہ میرے ساتھ تعلق بنانے میں بہت زیادہ شدت سے کام لے رہا تھا، مگر میں شادی شدہ تھی، اس لیے مجھے زیادہ کچھ محسوس نہیں ہوا، یا شاید میں بھی ہوس کے کھیل میں مکمل طور پر شامل ہو چکی تھی۔ وہ کام جسے میں اپنی مجبوری کا نام دے رہی تھی، دل ہی دل میں خوشی سے یہ کام میں کر رہی تھی۔ جہانگیر کو میں نے صرف دور دور سے ہی دیکھا تھا۔ اس کی پرسنالٹی بہت اچھی تھی، وہ دکھنے میں بے حد خوبصورت تھا، اس کی بات کرنے کا طریقہ بہت اچھا تھا۔ میں جب کبھی نوشین سے ملنے کے لیے آتی تھی تو وہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا، مگر آج وہ جس طرح سے میرے قریب تھا، میری دسترس میں تھا، میری انا کو تسکین مل رہی تھی اور میں بہت خوشی سے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر چکی تھی۔ 2 گھنٹے بعد دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا تو جو میری گردن پر بجا اپنا وہ لمس چھوڑ رہا تھا، مجھ سے پیچھے ہوا اور اپنے گرد چادر لپیٹتے ہوئے جا کر دروازہ کھول دیا تو میری دوست نوشین دروازے پر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کوئی عورت اپنا شوہر کسی دوسری عورت کے حوالے کر کے ایسے کس طرح مطمئن رہ سکتی ہے؟ جتنا حیران ہوتی اتنا ہی کم تھا، مگر مجھے اس بات سے کوئی مطلب نہیں تھا کہ نوشین کو دکھ ہوا ہو یا خوشی ہوئی ہو۔ اس بات کی اجازت اس نے مجھے خود ہی دی تھی، اس لیے وہ مجھے الزام نہیں دے سکتی تھی۔ میں بھی جلدی سے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ اچھی طرح سے منہ دھونے اور اپنا حلیہ درست کرنے کے بعد میں باہر آئی تو جہانگیر کہیں بھی نہیں تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلی پر جہانگیر اور نوشین لاؤنج میں ایک ہی سوئے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر مجھے بے حد جلن کا احساس ہوا اور میں ان کے پاس پہنچ گئی۔ جہانگیر کی طرف دیکھا اور کہا کہ تمہاری دوست نے مجھے بے ہوش کیا ہے، اس لیے اب اس کا انعام اسے دے دو۔ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ نوشین نے پاس پڑا ہوا پرس اٹھایا اور اس میں سے ہزار کے نوٹوں کی گٹی نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ میں نے پوری آنکھیں کھول کر پیسوں کی طرف دیکھا تھا۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے بولے، یہ سب تمہارے ہی ہیں، تم رکھ لو، یہ تمہارا ہی انعام ہے۔ نوشین بولی، تم نے میرے شوہر کو بہت خوش کیا ہے، اس کے لیے میں طے شدہ رقم سے زیادہ کافی رقم تمہیں دے رہی ہوں۔ میں نے جب وہ پیسے گنے تو پورے 1 لاکھ تھے۔ میں بہت خوش ہوئی اور نوٹوں کو اپنے پرس میں رکھ لیا۔ تبھی نوشین کو مجھے آواز دی اور کہا کہ تمہیں جب کبھی پیسوں کی ضرورت ہو تم بلا جھجک آ سکتی ہو۔ میں اس کا اشارہ سمجھ رہی تھی، اس لیے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے گھر سے نکل آئی۔ عجیب عورت تھی جسے اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے والی عورت سے کوئی جلن نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر خوشی نظر آ رہی تھی۔ میں پیسے کو ملنے کی خوشی میں اس کے چہرے پر موجود خباثت دیکھنا بھول گئی تھی۔ مجھے پیسوں کی بھی ضرورت تھی، ہمارا بجلی کا بل بہت زیادہ آ چکا تھا اور میرے بچوں کی ٹیوشن کی فیس بھی دینی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت کہا تھا کہ میں انہیں کسی دوسرے اسکول میں داخل کروا لوں، لیکن میں نے شہر کا سب سے مہنگا اسکول ہی چنا تھا۔ میرے دیور دیورانی کے بچے اسی اسکول میں جاتے تھے، تو میں کیسے پیچھے رہتی؟ کیوں رہتی؟ میں بھی چاہتی تھی کہ میرے بچے ہائی فائی انگلش میڈیم اسکول میں پڑھیں۔ ہر کوئی ترقی کر رہے ہیں، مگر آج کل میرے شوہر کے حالات تنگ تھے۔ پہلے وہ بخوشی بچوں کی فیس دے دیا کرتے تھے، لیکن اتنی زیادہ فیس دینے کے چکر میں ہماری سیونگز بالکل بھی نہیں ہو رہی تھی۔ آج کل مشکل وقت جب آن پڑا تھا تو میرے شوہر بہت پریشان تھے۔ مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہ ہوتا وہ پیسوں کا انتظام کہاں سے کرتے ہیں۔ اگر میں نے خود اپنے بچوں کی مہنگی اسکول میں داخلہ نہ دلوایا ہوتا اور مجھے اس کا ڈر نہ ہوتا کہ میرے شوہر انہیں اسکول سے ہٹا کر کسی دوسرے اسکول میں ڈال دیں گے، اسی بات کا خوف مجھے نوشین کے پاس لے گیا تھا۔ جب میں نے نوشین سے کچھ مالی مدد کرنے کو کہا تو اس کی عجیب سی بات نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ میں نے غصے میں اس کی بات سن کے اس کی طرف دیکھا تھا اور بیگ اٹھا کر وہاں سے آنے لگی تھی، جبکہ اگلی بات نے میرے قدم زنجیر کی طرح جکڑ کر رکھ دیے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ تم ابھی پیسے ٹھکرا کر جا رہی ہو، لیکن اگر تمہیں لگے کہ میری پیش گوئی صحیح ہے تو مجھے ایک فون کال کر دینا،
तुमने अभी जितनी भी बातें बोली हैं मैं सब भूल जाऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। मैं अब उसे उसकी तरफ देखकर घर आ गई थी। मेरा खून बार बार शिद्दत से खौल रहा था। पता नहीं नौशीन इस तरह की घटिया बात क्यों कर रही थी। वो बचपन से मेरी दोस्त थी और मेरे बारे में अच्छे तरीके से जानती थी। मैं ऐसा काम कभी भी नहीं करने वाली थी, ना अपने शौहर को धोखा देने वाली थी। मैं घर आ गई थी, मगर मेरे शौहर की परेशानी मेरे सामने थी और उन्होंने मुझसे ये बात कर ली थी कि मैं अपने बच्चों को इस महंगे स्कूल से हटाकर किसी दूसरे स्कूल में डाल दूं, जिनकी फीस कुछ कम हो, क्योंकि उनके हालात काफी ज्यादा खराब होते जा रहे थे। उर्दू बहुत अच्छे सोचने समझने के बाद मैंने नौशीन की बात मानने का फैसला कर लिया, इसलिए उसके घर चली गई। हम दोनों बचपन की सहेलियां थी और हमारी शादियां भी एक एक 2 साल के वक्फे से ही हुई थी। नौशीन ब्याह कर बहुत अमीर घराने में गई थी, जबकि मैं भी अच्छे खासे अमीर घराने में ही आई थी, मगर अब हम अलग हो चुके थे। कारोबार बढ़ चुका था, जिंदगी बहुत अच्छे तरीके से गुजर रही थी, मगर आजकल अरशद को कारोबार में काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे। हमने अपने खर्चों में कभी कोई कमी नहीं की थी, मगर बचत भी नहीं कर पाए थे और आज मुश्किल वक्त में हमें समझ नहीं आ रही थी कि बचत क्यों जरूरी कहा जाता है। मैं नौशीन के सामने खड़ी हुई थी, उसे बोल दिया कि मैं उसकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। उसने मुझे बिना शर्मिंदा किए गले लगा लिया और फिर अपने शौहर को आवाज दी, जो आया और बिना कुछ बोले मेरा हाथ पकड़ते हुए मुझे कमरे में ले गया और फिर मेरे साथ उसने तकरीबन 2-2.5 घंटे गुजारे। मुझे नौशीन की ये अजीब सी मंतक अभी तक समझ में नहीं आई थी। कोई औरत में इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो अपने ही शौहर के साथ रात गुजारने के लिए किसी लड़की को उसके आगे पेश कर दे। मैं 3 बच्चों की माँ थी, मगर न जाने क्यों उसके शौहर को मुझ में दिलचस्पी थी। शायद उसके शौहर ने उसे मजबूर किया हो कि वो मुझे इसके साथ वक्त गुजारने के लिए मनाए। बहरहाल सोचें मेरे जहन में बहुत थी, मगर सब कुछ हुए मैंने गिफ्ट की तरह तवज्जो दी और उसका साथ मुझे इतना बुरा भी नहीं लगा था। उसके बदले में मुझे पूरे 1 लाख रुपए मिल गए थे। मेरे घर की तमाम जरूरियात आराम से पूरी हो सकती थी। मैं बच्चों की फीस भी दे सकती थी और थोड़ी बहुत मदद अरशद की भी कर सकती थी। यही सोचकर मैं घर से चली गई, मगर मैं नहीं जानती थी कि आगे एक बड़ी क़यामत मेरी मुंतजिर है। अरशद टीवी पर कोई वीडियो देख रहे थे। उनका चेहरा गुस्से की शिद्दत से लाल हो रहा था। मैंने उनकी तरफ देखा तो मुझे उन पर बेहद प्यार आया। मैं गैर मर्द के साथ वक्त गुजार कर आ रही थी, मगर इस वक्त अपने शौहर को प्यार भरी नजरों से देख रही थी। कुछ भी था, इन दोनों के दरमियान ही निकाह का रिश्ता था और मुझे अरशद से मोहब्बत भी थी, मगर न जाने ये कैसी मोहब्बत थी कि मैं उसमें किसी और को भी शरीक कर आई थी। मैं जैसे ही आगे बढ़ी तो अरशद ने उठकर मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। उनका थप्पड़ पड़ते ही मेरी आंखों के सामने तारे नाचने लगे और मैंने हैरत से मुंह खोलकर अरशद की तरफ देखा। उन्होंने जिंदगी में पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था। वो तो इतने अच्छे थे, कभी मेरे साथ ऊंची आवाज में बात भी नहीं करते थे। मुझे लगा शायद मेरे 3-4 घंटे बाहर गुजार कर आने की वजह से वो गुस्से में है, इसलिए मैंने उनसे कहा, सॉरी अरशद, मुझे कुछ देर हो गई है, मैं तो आपके मसाइल हल करने के लिए ही गई थी। ये देखिए, मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया है, अब आपकी काफी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की थी। मेरे दिल में चोट था, इसलिए थप्पड़ खाकर भी मैं उसे वजाहतें दे रही थी। तभी अरशद ने सुर्ख आंखों से मेरी तरफ देखा और कहा कि इन पैसों का इंतजाम तुमने कहाँ से किया है? मैंने मुस्कुराते हुए उसके गले लगी और कहा कि अपनी दोस्त को बहुत वक्त पहले ये पैसे दिए थे और फिर इसके बाद उसने पैसे वो मुझे वापस लौटाने का कहती थी, मगर मैं उसे कहती थी कि रख लो, मेरे पास पड़े हुए होंगे तो मैं खर्च कर दूंगी, जबकि मैं चाहती थी कि जरूरत के वक्त काम आए। मेरे इतने झूठ पर अरशद ने मुझे बालों से पकड़कर पीछे किया और मेरी तवज्जो टीवी की तरफ दिलवाई। जैसे मेरी टीवी पर नजर पड़ी तो मेरी रूह फना हो गई। मैं फटी फटी आंखों से टीवी पर देख रही थी। 3 बच्चों की मां होने के बावजूद मैंने किस कदर घटिया जुर्म का इर्तिकाब किया था, ये मुझे अब एहसास हो रहा था। जब वक्त मेरे हाथों से निकल चुका था, मैं जहांगीर के साथ उसकी बाहों में धीरे धीरे डांस के स्टेप ले रही थी और अब फिर उसने मुझे बेड पर लेके जाना और मुझ पर शिद्दतें लुटाता, वो सब कुछ सामने चल रहा था। ये सुन के मुझे बालों से पकड़कर दूर किया और कहा कि इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सब नौशीन और जहांगीर की चाल थी, जिसमें मैं आसानी से फंस गई थी। नौशीन तो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मगर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था, मुझे इस बारे में खबर नहीं थी। मैं बार बार अरशद के सामने हाथ जोड़ रही थी, उससे माफी मांग रही थी, उससे अपने बच्चों का वास्ता दे रही थी, मगर वो संग दिल बना खड़ा था। उसे मुझ पर रहम नहीं आया था और आना भी नहीं चाहिए था। मैं उसकी मोहब्बत थी, उसकी बीवी थी, मगर उसके बावजूद गैर मर्द की शर्मिंदा होने की बजाय मैं खुश हो रही थी। अरशद तकलीफ से बोल रहा था कि 4 दिन तुमसे तंग दस्ती नहीं देखी गई, मेरे साथ बेवफाई करते हुए तुम ये भी भूल गई कि मैंने तुम्हें कितना खुशहाली भरा वक्त भी तो दिया था। तंगी तो कुछ दिन की थी, कट जाती, मगर तुमने तो मेरा एतबार और भरोसा ही तोड़ दिया।
तुम मेरे बच्चों की माँ हो, इसलिए मैं तुम्हें तलाक नहीं दे रहा, मगर अपने घर से निकाल रहा हूँ। अब मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तुम चाहो अपने बच्चों से मिल सकती हो, मगर मुझे अपनी शक्ल दोबारा ना दिखाना। मैं जल्दी से उठकर अरशद के कदमों में गिर गई और उससे माफ़ी मांगने लगी। नौशीन ने मेरे साथ बहुत घटिया खेल खेला था। मैं उससे भी सवाल जवाब करने वाली थी, मगर इस वक्त मेरा अरशद को मनाना बहुत ज़रूरी था। अरशद ने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया तो मैं रोते हुए वहीं पर बैठ गई। मैं नहीं जानती थी कि अभी ऐसे दिन और भी मुझे देखने हैं। मैंने जितना बड़ा गुनाह किया था उसकी सज़ा मुझे अभी से मिलना शुरू हो गई थी, मगर मैं नहीं जानती थी मेरी किस्मत में ये सज़ा कितनी तवील होने वाली है। मैं काफ़ी देर वहीं पर बैठी रही, दरवाज़ा खटखटाती रही, मगर अरशद ने दरवाज़ा ना खोला। मैं जानती थी अरशद किस तरह टूट फूट का शिकार हो रहे होंगे। मेरे इस धोखे के बाद मैं चाहते हुए भी उन्हें इस तकलीफ से नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि उन्हें ये तकलीफ देने वाली भी मैं ही थी। मेरे बच्चों के स्कूल से आने में अभी वक्त बाकी था। मैंने खुद को संभाला और फौरन से नौशीन के घर की तरफ चल पड़ी। मुझे उससे सवालों जवाब करने थे, बजाय उसके कि मैं उसका मुहासबा करती। मैं उठी और फिर नौशीन के घर की तरफ चली गई, और मैंने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया, नौशीन जैसे मेरे इंतजार में ही बैठी थी, उसने फौरन दरवाज़ा खोल दिया। मैं अंदर जाते ही नौशीन के चेहरे पर थप्पड़ मारा। नौशीन ने मेरे थप्पड़ का गुस्सा करने की बजाय हंसते हुए मुझे अंदर आने का रास्ता दिया और कहा, जल्दी से अंदर आ जाओ। मैं चटापट दाखिल हो गई, क्योंकि मुझे अभी उसे सवाल जवाब करने थे। सामने ही सोफे पर जहांगीर बैठे हुए थे। उनकी तरफ देखकर मैंने नफरतों से मुंह फेर लिया। अभी कुछ वक्त पहले मैं जिसकी आगोश में थी, जिसके साथ बहुत खुशी से वक्त गुजार रही थी, अब उसे नफरत से देख रही थी। वो भी मेरे इतनी जल्दी बदल जाने पर हंस रहा था। मैंने नौशीन से कहा, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? अगर तुम्हें ये सब कुछ करना था तो तुम किसी और को रख लेती। तुमने मेरा तो घर उजाड़ दिया है, दोस्त होकर भी मेरी पीठ पर वार किया है। कहने लगी कि तुम्हें दोस्ती का ख्याल उस वक्त नहीं आया जब तुम मेरे शौहर के साथ बाखुशी वक्त गुजारने के लिए राजी हो गई थी। ये सब हमने मंसूबाबंदी के तहत ही किया था, और अब ये तुम्हें बता दूं कि हमारे आगे के इरादे क्या हैं। इसके बाद नौशीन ने मुझे जैसे जैसे अपना मंसूबा बताया, मेरी रूह फना हो गई थी। मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हो गया था। मैं अनजान बनी इस धोखे में आ गई थी। उसके लफ्ज़ों को सुनकर मेरी रूह फना होने लगी थी। उसने कहा था कि उन्होंने मंसूबाबंदी के तहत ही मेरा इस्तेमाल किया था, और अब आगे भी 1 साल तक वो मेरा इस्तेमाल करने वाले थे। नौशीन मुझे वो सब करवाने वाली थी जिसके बारे में मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उसने मुझे कहा था कि वो मेरा मैं कमरे में बैठी हुई थी और अपनी किस्मत को रो रही थी। जो कुछ मुझे नौशीन ने बताया था, मेरा उस पर एतबार करने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। अभी मेरी यहाँ आंख खुलेगी और सब खत्म हो जाएगा, गायब हो जाएगा। सितम की बात यह थी कि मैं अभी भी अपने गुनाह पर नादिम नहीं थी, बल्कि यही सोच रही थी कि नौशीन ने मेरे साथ बुरा किया है। जब इंसान को अपनी गलती का एहसास ना हो, जो हमेशा अपना कसूर दूसरों पर ही डालता है, जैसे उस वक्त में मैं कर रही थी। मुझे नौशीन के घर में रहते हुए 3 माह हो गए थे। मैं अपने मायके भी जाकर अपनी बाकी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी। मेरी माँ 2 साल पहले ये दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। मेरे भाई भाभी घर में थे। मैं अगर इनके पास जाती तो वो लोग मुझसे सवाल जवाब करते, मेरी किस कदर बदनामी होती, और शायद भाभियां तो मुझे घर से ही निकाल देती। मैं नौशीन का धोखा जानते समझते हुए भी उसके घर पर रहने पर मजबूर थी। मैं हर रोज अपने शौहर के पास जाती थी, उसके दर पर गिड़गिड़ा कर माफी मांगती थी, अपने बच्चों से मिलती थी और वापस आ जाती थी। मेरे बच्चे बार बार मुझसे सवाल जवाब करते थे कि मम्मा आप कहाँ गई हैं, आप घर में क्यों नहीं आती, लेकिन मेरे पास उनके सवालों का जवाब कुछ नहीं होता था, जबकि अरशद मेरी तरफ देखकर ही मुंह मोड़ लिया करते थे। इन 3 महीनों में वो बेहद कमजोर हो गए थे। नौशीन मेरा हर तरह से ख्याल रख रही थी। वो इस बारे में मुझसे एक बार बात तो करके देखती, शायद हम कोई बेहतर हल निकाल लेते, लेकिन उसमें अपनी कमजोरी छुपाने के लिए मुझे इस्तेमाल किया था। हम दोनों की शादी में बस 1 साल का फर्क था। मेरी शादी 1 साल पहले हुई थी। मेरे 3 बच्चे हो चुके थे, जबकि नौशीन का अभी तक अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से उसे महरूम रखा हुआ था। उसने अपने सारे टेस्ट और मेडिकल रिपोर्ट्स करवा ली थी, सब कुछ क्लियर था, बस अल्लाह की तरफ से ही देर थी। मगर नौशीन से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। नौशीन का शौहर उससे बहुत मोहब्बत करता था। वो दूसरी शादी के हक में हरगिज नहीं था, और ना ही नौशीन ये बात बर्दाश्त कर सकती थी कि उसका शौहर दूसरी शादी करे, लेकिन उसको औलाद की भी शदीद ख्वाहिश थी। वह हर सूरत जहांगीर की औलाद चाहती थी। जहांगीर ने उसके सामने बच्चा अडॉप्ट करने का ऑप्शन भी रखा था, लेकिन उसे ये कबूल नहीं था। इसलिए उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, और फिर उसने मेरा इस्तेमाल करने का सोचा। जब मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी, तब उसने मेरे सामने ये बात रख दी कि उसका शौहर अगर मेरी तरफ मतवज्जो होता, या उससे भी कभी मुझे मेरे साथ ऐसी कोई वैसी हरकत की होती, तब तो मुझे ये लगता कि उसके शौहर की ख्वाहिश, मगर वो हमेशा मुझसे बेनियाज रहा था। नौशीन की इसी ख्वाहिश ने मुझे सदमे में डाल दिया था, मगर मैं सोचने समझने के बाद मैंने यही फैसला किया था कि मैं तो शादीशुदा हूँ। एक बार फिर उसके करीब चले जाने से मेरा क्या बिगड़ जाएगा, और अरशद को कौन बताएगा? मेरा ये सब कुछ करने से हमारे मसाइल हल हो जाएंगे।
यही सोचकर मैंने नौशीन की बात मान ली थी, मगर वो लोग पहले से ही मेरे खिलाफ साजिश तैयार किए बैठे हुए थे। उन्होंने पहले से ही एक कमरे में खुफिया कैमरा लगा दिया था, जिसमें मैं जहांगीर के साथ कुर्बत के लम्हात गुजार रही थी। और फिर मेरे घर पहुंचने से पहले उन्होंने वो वीडियो मेरे शौहर को भेज दी थी, जिसे उन्होंने एलईडी पर लगाकर देखा था, और फिर इसी टाइम मुझे घर से धक्के देकर निकाल दिया था। मैंने नौशीन के पास सवालों के जवाब करने आई थी, मगर नौशीन की अगली बात सुनकर तो मैं हैरान ही रह गई थी। उसका कहना था कि अब मुझे इस घर में रहना होगा और उनके जहांगीर के बच्चे को पैदा करना होगा। न जाने नौशीन को क्यों यकीन था कि एक बार कुर्बत किया जहांगीर के साथ गुजारने में इसके बच्चे की मां मैं बन सकती हूँ। मेरे पास फिलहाल कोई ठिकाना नहीं था, मगर मैं ऐसे लोगों के घर में नहीं रह सकती थी जिन्होंने मुझे अपने घर से निकलवा दिया था। बेशक गलती मेरी थी, लेकिन वो भी मेरी गलती में बराबर के शरीक थे। मुझे बर्बाद करने में ज्यादा हाथ तो इन्हीं का था। मगर नौशीन की एक और धमकी काम कर गई। नौशीन ने कहा था कि वो मेरे भाई और भाभी को भी मेरी और जहांगीर को वीडियो भेज देगी, और यहीं पर मैं बेहद मजबूर हो गई थी। इस वक्त मेरे बारे में सिर्फ अरशद को पता था कि मैं ये सब कुछ कर चुकी हूँ, मगर अगर मेरी भाभी और भाई को पता चल जाता तो वो हमेशा के लिए मुझे जान से ही मार देते। पूरे खानदान में मेरी बदनामी हो जाती। मेरी भाभी की तो वैसे भी बात बढ़ा चढ़ाकर करने की आदत थी। वो सारे खानदान को बता देती कि मैं ऐसी लड़की हूँ, हालांकि इससे पहले मैंने कभी जिंदगी में ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था, और ये बात नशीन भी अच्छे तरीके से जानती थी। मगर उसने फिर भी मेरे साथ गलत किया था और मेरी मजबूरी का फायदा उठाया था। नौशीन के घर में रहते हुए जैसे मुझे एक महीना गुजरा था, मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ, और ये बात मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकाल गई थी। मैं इस बच्चे को पैदा करके इस बच्चे का नाम नहीं दे सकती थी, अलबत्ता डीएनए टेस्ट जरूर करवाया जा सकता था। 3 महीने गुजरने के बाद नौशीन ने डीएनए टेस्ट करवाया था, और उसकी खुशी की इंतहा न रही कि वाकई वो बच्चा जहांगीर के बच्चे की ही मैं मां बनने वाली थी। मेरी कोख में एक नाजायज बच्चा पल रहा था, और यही मेरी बर्बादी का सबब था। मुझे इस बच्चे से नफरत महसूस होती थी, बेहद नफरत। मैंने यही सोचा था कि इस बच्चे को पैदा करके नौशीन के मुंह पर मारूंगी और अरशद से माफी मांग लूंगी, और अगर मुझे माफ ना किया तो घर के सामने वाली रोड पर ही किसी गाड़ी के नीचे आकर मर जाऊंगी। मैं अरशद और अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती थी। 9 महीने गुजरे तो मुझे अस्पताल ले जाया गया। मेरी तबीयत भी आज खराब थी। मुसलसल टेंशन और डिप्रेशन में रहने की वजह से मेरा बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इंतहाई तकलीफदेह मराहल से गुजरने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। नौशीन की खुशी की इंतहा नहीं थी, मगर वो पहले मेरे पास आई थी और मुझे गले लगाया, मुझसे माफी मांग रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। औलाद की ख्वाहिश में शायद वो भी बेहद मजबूर हो गई थी, मगर ऐसी भी क्या मजबूरी कि अपनी ही दोस्त का गलत फायदा उठा लिया जाए। मैंने इससे रुख मोड़ लिया था, और अब मेरा दिल इस बच्चे को उठाने के लिए नम हो रहा था, जो मेरी बर्बादी का सबब बना था। मैंने नौशीन से बच्चे उठाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उसने चुप करके बच्चा मेरी गोद में डाल दिया। मैंने उसे देखा तो सीने से लगा लिया। बेहद तकलीफ के मराहल से गुजरने के बाद मैंने उस बच्चे को पैदा किया था। मैं ही बच्चा इनको देना नहीं चाहती थी। मैं ये सोच रही थी। नौशीन ने कहा कि वो इस बच्चे को मुड़कर कभी भी नहीं देखूंगी। अब इसके लिए प्यार मेरे दिल में आ रहा था। बच्चा जायज हो या नाजायज, इसमें सिर्फ माँ की गलती होती है। अलबत्ता कितनी जायज बच्चे को पैदा करते वक्त तकलीफ होती है, इतनी ही बच्चे को पैदा करते हुए भी होती है। मगर कुछ देर पकड़ने के बाद मैंने वो बच्चा नौशीन की गोद में दे दिया था। अस्पताल से निकल के एक बार फिर से मैं अरशद के पास पहुंची थी, लेकिन इस बार भी उसने मुझसे रुख मोड़ लिया था। बच्चे बार बार मुझसे चिमट रहे थे और कह रहे थे कि अब कहीं नहीं जाएंगी। मैंने अरशद से दरख्वास्त की कि मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, मुझे अपने घर में ही रहने दो, कहीं पर। मैं उसका और बच्चों का भी ख्याल बेहद रखूंगी, और बदले में उससे कुछ भी नहीं मांगूंगी। जुड़े हाथ देखकर अरशद ने मुझे रहने की इजाजत दे दी थी। मेरी हालत शायद उसे भी तशवीश में मुब्तला कर गई थी। अब मैं अपने ही घर में अजनबियों की तरह रहती हूँ। अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, उनका ख्याल रखती हूँ, मगर अरशद मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। मैंने नौशीन को जो बच्चा दिया था पैदा करके, उसके दिल में सुराख है। डॉक्टर का कहना है कि वो बच्चा कुछ ही दिन का मेहमान है, जल्दी उसकी जिंदगी के चिराग बुझ जाएगा। नौशीन मेरे पास आती है हर रोज माफी मांगने। ऐसा लगता है कि शायद उसे मेरी बद्दुआ लग गई है, जो उसकी झोली भर कर भी खाली रह गई है। मैंने नौशीन को माफ कर दिया, और कई बार बच्चे से भी चोरी छुपे मिलकर आई हूँ। जो लोग बुरा काम करते हैं उनका घर कभी खुशियों से भरा नहीं हो सकता। नौशीन ने मेरा घर उजाड़ दिया था, जबकि मैंने लालच के लिए गलत जगह पर ताल्लुक बनाया था। इसलिए हम दोनों को सजा मिल चुकी है, जबकि जहांगीर और अरशद बहुत तकलीफ में है। मगर ये तकलीफ इंसानों की तरफ से उन पर आई है, अल्लाह की तरफ से कोई भी आजमाइश नहीं है। इसलिए उनके दिल मुतमईन है। जहांगीर ने भी मुझसे मिलकर माफी मांगी है, और मैं हर वक्त अपने बच्चे की सेहत और सलामती के लिए दुआ मांगती हूँ, क्योंकि उसे मैंने ही पैदा किया है, क्योंकि वो मेरे जिगर का टुकड़ा है। मैं किसी सूरत नहीं चाहती कि कोई अपनी छोटी उम्र में इस दुनिया से चला जाए। अरशद से भी हर रोज माफी मांगती हूँ, लेकिन अरशद मुझे माफ करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जल्दी उनका दिल मेरी तरफ से पिघल जाएगा और मेरी इस खता को वो माफ भी कर देंगे।